Good morning. Today we will discuss about the ratio analysis. Okay. Ratio analysis क्या है? Ratio analysis is a powerful tool through which a company's economic and financial position can be fully expressed or fully x-rayed. Okay. तो ratio analysis के these are the different types of ratio analysis. Number 1 liquidity analysis, number 2 activity or turnover analysis, number 3 profitability analysis, number 4 long term solvency analysis, number 5 investors analysis. Okay, let me discuss you first liquidity analysis. Liquidity analysis are those ratios through which the company's liquidity position can be easily known to everybody. Okay, liquidity analysis has three heads: current ratio, liquid ratio, absolute liquid ratio. Current ratio means the total of the current asset divided by current liability. Okay, current asset, what is the current asset? Current asset means current asset are those assets which are easily converted into cash within one accounting period. These are cash, bank balance, short-term investment, marketable securities, etc. What is current liability? Here current ratio equal to current asset by current liability. Okay, liquid ratio equal to liquid asset divided by current liability. What is liquid asset? All the current asset minus prepaid expenses minus inventory is called liquid asset. Okay, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मेट क्या होगा? लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. ओके, लिक्विड एसेट आर दोज एसेट व्हिच आर इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ओके, तो लिक्विड रेशियो का फार्मूला क्या होगा? लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लिक्विड. एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो इक्वल टू क्या होता है? एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो इक्वल टू एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट divided by current liability. What is absolute liquid asset? Absolute liquid asset are those liquid assets which are converted into cash within a very short period of time. That is very short period of time. That means within a span of time. Okay, so that's why absolute liquid asset. The examples of the absolute liquid assets are cash balance, bank balance, and marketable securities. That means these are the balances which are easily converted into cash within a very short period of time. Okay, तो इसका फॉर्मूला होगा absolute liquid asset divided by current liability. What is the rule of thumb for the current ratio? That is 2:1. That means if the current asset is more than the 2 times more than the current liability, then it's a good. If it decreases, then it's bad. If it extremely increases, that means the company has more current asset rather than it's fixed. Okay, liquid ratio, the rule of thumb is 1:1. Then absolute liquid ratio, the format is equal to 1:2, rule of thumb. These are the liquidity analysis. These are the ratios of the liquidity analysis. Okay, now we will go for the activity or turnover analysis. What is activity or turnover analysis? Activity ratios defines that how the resources of the organization can be effectively utilized. Okay, activity turnover ratio can be categorized under these heads: stock turnover ratio, debtors turnover ratio, creditors turnover ratio, working capital turnover ratio, fixed asset turnover ratio. Okay, first all of you write down. Okay, write it. Write down. ठीक है, हो गया? ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो. ओके, नंबर 1 स्टॉक टर्नओवर रेशियो. स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक.
COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। ओके, COGS कैसे आता है, इसे लिखोगे COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके ठीक है, लिख लो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, एवरेज स्टॉक कैसा आएगा, एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। ओके, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। ओके ठीक है, तो COGS स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू COGS डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। COGS के साथ आए ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एवरेज स्टॉक होगा क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। ये जो आएगा उसको हम लिखेंगे किस में, टाइम्स में, जो भी होगा। सपोज COGS हो रहा है 2 लाख, एवरेज स्टॉक हो रहा है 20,000, देन व्हाट दिस is 10 times stock turnover ratio equal to 10 times. Okay, write it. नेक्स्ट होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बाद इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड। इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड, इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड के मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो नहीं, ऐसा नहीं है। इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड दैट इज स्टॉक कन्वर्जन पीरियड इक्वल टू फार्मूला नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो और यू कैन से इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ओके, तो इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, हाउ मेनी डेज इन ए ईयर, 365 डेज, दैट इक्वल टू 365 डिवाइड बाई STR कितना आया था 10, तो ये हो गया 36.5, दैट इज इक्वल टू 36.5 कैसा डे नहीं होता है इसलिए 37 डेज, ये टाइम्स में आएगा। ओके ठीक है, लिख लो सर। अच्छा, फिर डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो। ओके, डेब्टर्स कैसे आएगा, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो होगा नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड डेब्टर। पहले देखो एवरेज ट्रेड डेब्टर कैसा आता है, एवरेज ट्रेड डेब्टर मतलब ट्रेड डेब्टर कैसे आता है पहले बता देता हूँ। ट्रेड डेब्टर इक्वल टू बिल्स रिसीवेबल प्लस सन्ड्री डेब्टर। बिल्स रिसीवेबल प्लस सन्ड्री डेब्टर। ओके, तो एवरेज ट्रेड डेब्टर कैसा आएगा, एवरेज ट्रेड डेब्टर दैट इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड डेब्टर प्लस क्लोजिंग ट्रेड डेब्टर डिवाइड बाय 2। ओके, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड डेब्टर। अच्छा, तो यहाँ पर ट्रेड डेब्टर कैसा आएगा, बिल्स रिसीवेबल और सन्ड्री डेब्टर। अगर एवरेज ट्रेड डेब्टर क्वेश्चन में नहीं होगा तो हम सन्ड्री मतलब ट्रेड डेब्टर को ही ले लेंगे एवरेज ट्रेड डेब्टर।
अच्छा, बाकी जो ट्रेड डेप्टर के बदल में अगर सन्ड्री डेप्टर है, बिल्स रिसीवेबल नहीं है क्वेश्चन में, तो सन्ड्री डेप्टर ही हो गया एवरेज ट्रेड डेप्टर। सन्ड्री डेप्टर का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है तो वहां पर एवरेज करेंगे, नहीं तो वो डायरेक्टली। अच्छा, वो भी क्या आएगा, वो भी आएगा टाइम्स में। ओके, फिर हो गया। फिर होगा क्या, डेप्टर्स कलेक्शन पीरियड। डेप्टर्स कलेक्शन पीरियड कैसे होगा, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर डिवाइड बाय डिटेल जो पहले से आया हुआ था। अच्छा, नंबर ऑफ डेज इन ईयर दैट इज इक्वल टू 365 डिवाइड बाय, अगर डिटेल आया है क्या हो रहा है, अगर 5, ओके, डिटेल है 5 तो वो क्या हो गया, 5 7 जा 35 173 डेज, वो डेज में आएगा। ओके, जब भी मतलब कलेक्शन पीरियड कहते हैं और कन्वर्जन पीरियड करते हैं, जो नंबर ऑफ डेज इन ईयर दैट इज 365 डिवाइड बाई जो आया है पहले DTR, पहले से आया हुआ है, सपोज DTR 5, तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर 365 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 73 डेज। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो दैट इज इक्वल टू, अच्छा, डेप्टर में अगर नेट क्रेडिट सेल्स होगा तो क्रेडिटर में क्या होगा, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स। अच्छा, क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड क्रेडिटर, यहाँ पर भी सिंपली वैसे ही होगा जैसे पहले वाला हुआ था। ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर मतलब क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। ओके, तो एवरेज ट्रेड क्रेडिटर कैसे होता है, ओपनिंग ट्रेड क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग ट्रेड क्रेडिटर डिवाइड बाई 2। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग नहीं है तो क्लोजिंग को ही ले लेते हैं एवरेज ट्रेड क्रेडिटर। ओके, अच्छा, सपोज यहाँ पर होता है नेट क्रेडिट परचेज 10 लाख डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड क्रेडिटर होता है 1 लाख, तो ये क्या आ गया 10 टाइम्स। तो नेक्स्ट के बाद क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर डिवाइड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर हाउ मच, 365 डिवाइड बाई 10 दैट इक्वल टू 36.5, इसको राउंड ऑफ करने से क्या हो रहा है 37 डेज। दिस इज द क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, राइट इट। नेक्स्ट होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दैट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो सेल्स, अगर सेल्स नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, अच्छा, नेक्स्ट होता है कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसे CTR कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो का सेल्स डिवाइड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स डिवाइड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। सेल्स तो पता होगा, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा आएगा,
कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ओके, अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पर होगा शायद सेल्स इक्वल टू सपोज 2 लाख, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होगा सपोज 6 लाख, तो ये क्या हो गया 1/3। सेल्स ऐसे ही होता है, एग्जांपल सपोज सेल्स हो गया 12 लाख, नेट वर्किंग कैपिटल हो गया 4 लाख, तो ये क्या हो गया 3। ऐसे ही मतलब सारे के सारे एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो हम निकालेंगे। फिर लास्ट कंसेप्ट यही है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, थर्ड वाला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। देखो वो सबसे मतलब इजी ही कंसेप्ट है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के जितना भी रेशियो है, सिंपली क्या होगा, जो भी प्रॉफिट है डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100 हो गया है। सिंपली अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे होगा, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। सारे के सारे जहां भी है, जो भी रेशियो डिवाइड बाय उतना नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो आज हमारे क्या क्या कंप्लीट हुआ है, लिक्विडिटी रेशियो कंप्लीट हो गया है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कंप्लीट हो गया है, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो कंप्लीट हो गया है। ओके, तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है।